Hello everyone, myself Mrs. Nandini Pandey, and today we are going to start with the fifth function of management, that is coordinating. Now before moving to our topic, let us first understand what this coordination means, what the coordination actually means. So coordination is nothing but it is a synchronization of the efforts of all the departments present into the organization. Coordination means synchronizing the efforts of all the people working in an organization. For an example, to combine the efforts of all the department, over here we can say the marketing department, sales department, manufacturing department, purchase department, finance department, right? To combine the efforts of all the department pertaining in an organization and to make sure that they are moving towards the same direction, that is to achieve the overall organizational goals and objective, right? In an organization there are various departments, and in those departments there are n number of employees are employed, each one having their own perspective, each one having their own agenda, each department have their own agenda. ठीक है, ऐसे में हर एम्प्लॉय और हर डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को मोल्ड करना, उनको डाइवर्ट करना टुवर्ड्स दी अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. That is the work which coordination do in the organization, right? So coordination is synchronization of efforts of all the department. ये example है हमारे सामने that we can elaborate and we'll try to clear our understanding with the help of this example. Marketing department found it out कि भैया in the coming period will be requiring 1000 units of product. ठीक है, they informed regarding the same to the sales department. सेल्स डिपार्टमेंट ने लॉजिस्टिक्स अरेंज किए, होलसेलर्स से बात की, रिटेलर्स से बात की, सो दैट जैसे ही मार्केट में डिमांड आए उनका प्रोडक्ट उनके कस्टमर्स तक पहुंच जाए. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द राइट मीडियम और द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दे ऑल आर सेट टू गो, बट either they would be able to supply those goods and services, and कब वो नहीं कर पाएंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई जब तक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर करके उनको वो गुड्स प्रोवाइड नहीं करेगा. No matter how effective their planning is, how effective and how impactful marketing department और sales department का planning है, अगर उनके पास physically goods available नहीं होंगे तो वो क्या supply करेंगे market में? सारा का सारा प्लान रखा रह जाएगा, राइट? सो और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर दोस 1000 यूनिट्स दे विल बी रिक्वायरिंग द रॉ मटेरियल, राइट? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को राइट टाइम पे सेल्स डिपार्टमेंट का ऑर्डर अकम्प्लिश करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जिसको वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, राइट? इन ऑर्डर टू अक्वायर द रॉ मटेरियल, परचेस डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल परचेस करके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सप्लाई करना होगा, है कि नहीं? अब परचेस डिपार्टमेंट को इन ऑर्डर टू परचेस द रॉ मटेरियल फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. सो अल्टीमेटली जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस को रिलीज नहीं करेगा, परचेस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेस करके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सप्लाई नहीं कर पाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट फाइनल गुड्स सप्लाई नहीं कर पाएगा सेल्स डिपार्टमेंट को, एंड देन what is the use of marketing? No use of marketing, right? So here we can see that the work of all the department are interconnected, right? The work of all the department is interrelated, so they have to coordinate their activities with one another in order to ensure the unity of action. जब तक वो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन में काम नहीं करेंगे, एक यूनिटी ऑफ एक्शन के अंडर वर्क नहीं करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू अचीव द सक्सेस, हाउ दे आर गोइंग टू अचीव द ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो कोऑर्डिनेशन along with being the fifth function of management, ठीक है, it is also the essence of management. It is also the essence of management, सबसे important function of management. ये वो hidden force है जो सारे के सारे दूसरे functions of management को क्या करता है, bind करता है. Now the question over here is, in the organization of commerce and management under coordination, बुके ऑफ फ्लावर का क्या काम है, इस बुके का क्या काम है यहाँ पे? So this bouquet gives us the best example of coordination. As we can see in this bouquet the different colors of flowers, right? There is a pink color, yellow color, I can see the red and the white one also. So ये जो different color के flowers हैं, these are the different functions of management. और वो thread दिख रहा है आपको रेड कलर का, जिसने उन सारे फ्लावर्स को एक साथ नॉट करके एक बंडल क्रिएट किया है, जिसकी वजह से ये बुके क्रिएट हुआ है. इफ़ यू विल ओपन दैट थ्रेड, वो सारे फ्लावर्स अलग अलग हो जाएंगे. तो ये जो रिबन है, ये जो थ्रेड है,
इसने उस बंडल को, उस बुके को एक साथ लाके इतना ब्यूटीफुल बनाया है। तो जो काम इस बुके में थ्रेड कर रहा है, वही काम हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कौन करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। जो रोल इस बुके में थ्रेड का है, वही रोल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में किसका है? थ्रेड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारे कोऑर्डिनेशन का है, राइट? सो इट इज द हिडन फोर्स व्हिच बाइंड्स all the other functions of management. So coordination between different functions and levels of employees ensures the smooth flow of activities. Coordination between the different functions and different employees working at the different levels in the organization ensures the smooth flow of activities. But on the other side, let us also understand it कि कोऑर्डिनेशन का ये जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं होगा. इट विल नॉट गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय एनीवन. It is the manager who will have to take the efforts. It is the manager who will have to take the efforts. Managers who belongs to the different department, each and every manager of the organization will have to come forward and take an effort in order to implement this function, because coordination will not exist until and unless the efforts are taken to achieve it from the manager's side. जब तक हमारा मैनेजर एफर्ट नहीं लेगा तब तक ये फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता. सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड टू यूज इट, टू इम्प्लीमेंट इट ऑन द राइट टाइम इन द राइट वे, right? So guys, here we are done with the meaning of coordination. Now let us try to understand coordination with the help of few definitions, right? The first definition is given by McFarland. Now what he says, according to him, coordination is nothing but it is a process where an executive, over here by executive is trying to tell us the role of manager. Executives are nothing but they are the managers. So coordination is the process whereby a manager develops an orderly pattern of group efforts. ठीक है, ये आज खड़े हुए, आज मैनेजर ने सोचा और कल इम्प्लीमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता. इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर प्लानिंग फ्रॉम द साइड ऑफ मैनेजर. क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू परफॉर्म, व्हाट आर द डायरेक्शन यू आर गोइंग टू पास ऑन टू योर एम्प्लॉयज, सो दैट दे विल अंडरस्टैंड दैट कोऑर्डिनेट करना अपनी एक्टिविटीज़ को विद द डिफरेंट एम्प्लॉय, विद द अनदर एम्प्लॉय इन द अदर डिपार्टमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? सो coordination is the process whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secure unity of action in the pursuit of common purpose. ये common purpose क्या है? ये common purpose है overall organization का aim and objective. Organization का overall objective जो है वो है हमारा common purpose. So according to McFarland, coordination is the process whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates. अपने डिपार्टमेंट में फॉल करने वाले हर एक एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेशन की अहमियत बताना, उसकी इम्पोर्टेंस बताना, हर एक एम्प्लॉय को ये बताना कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक्टिविटी आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं की जाती है. इट रिक्वायर्स द इंटरेक्शन विद द अदर एम्प्लॉयज इन द अदर डिपार्टमेंट. ओनली देन यू कैन अचीव द सक्सेस. इंडिविजुअल ग्रोथ कभी भी पर्सपेक्टिव नहीं होता है. हमने चैप्टर 1 में किया है, राइट? हमने चैप्टर 1 में जब हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स देखे थे, ओवर देयर वी अंडरस्टूड कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ क्या करती है, सिंक्रोनाइजेशन में काम करती है और ईच एंड एवरी वन's एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन दी अनदर वन. ठीक है, तो आप आइसोलेशन में तो कुछ अचीव नहीं कर सकते. सो ग्रुप एफर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, ये चीज़ का, इस बात का एहसास दिलाना अपने सबॉर्डिनेट्स को और यूनिटी ऑफ एक्शन सिक्योर करना. वन हेड वन प्लान. एक ही बॉस होगा जो एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर पास ऑन करेगा. अगर मल्टीपल बॉसेस मल्टीपल ऑर्डर्स देंगे, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, अपना 100% नहीं दे पाएगा, राइट? एंड वाई आवर मैनेजर इज गोइंग टू परफॉर्म ऑल दिस थिंग्स, यूनिटी ऑफ एक्शन, ग्रुप एफर्ट्स, क्यों? सो दैट वो अपने कॉमन पर्पस यानी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एक स्टेप आगे जा सके. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड डेफिनेशन गिवन बाय मिस्टर हेनरी फ्योल. ठीक है, हमारे फादर मैनेजमेंट के. सो अकॉर्डिंग टू फ्योल, टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज. ये 8 to 10 years फ्योल के बारे में पढ़ते पढ़ते, फ्योल के बारे में पढ़ाते पढ़ाते अब ऐसा हो गया है कि फ्योल स्टेज जस्ट नेक्स्ट टू माई हाउस.
ठीक है, जब भी ये नाम आता है हेनरी फ्योल के बदले मिस्टर फ्योल, फ्योल भाई साहब, ठीक है, ऐसे निकलता है। कुछ सालों में आप भी ऐसे ही प्रोनाउंस करोगे। सो दिस मिस्टर फ्योल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम टू कोऑर्डिनेट मीन्स टू हार्मोनाइज। हार्मोनाइज का मतलब होता है बैलेंस क्रिएट करना। हार्मोनाइज का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट अ गुड बैलेंस, गुड अमाउंट ऑफ बैलेंस into the all the activities, in the all the activities of the concerns, concern यानी हमारा organization, and why to do this? To facilitate its working and its success, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ स्मूथली चलती रहे, हर एक्टिविटी ऑन अ स्मूथ ग्राउंड परफॉर्म होती रहे, साथ ही साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन नरिश और फ्लरिश भी करे, सो दैट वी कैन एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस, राइट। फ्योल के डेफिनेशंस एकदम अप टू द मार्क होते हैं, short, simple and sweet, है ना। So to coordinate means to harmonize the activities of concern to facilitate its working and its success in an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ एंड सक्सेस अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑन अ स्मूदर पेस, ऑन द राइट टाइम, इन द राइट डायरेक्शन, इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर आप परफॉर्म करो, सो दैट आप सक्सेस अचीव करो, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट टास्क राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ लोगों के साथ परफॉर्म किया जा रहा है इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, आप सारे अवेलेबल रिसोर्सेज को टू द मैक्सिमम एक्सटेंट यूटिलाइज कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सक्सेस, राइट। यू आर टेकिंग अ स्टेप अहेड टुवर्ड्स द सक्सेस, इट इज़ डिफाइनाइट, नोबडी कैन चेंज इट आउट, है ना। तो जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, दैट मीन्स यू आर taking single baby steps ahead towards the overall achievement of the organizational goals and objectives. और ये कब होगा? जब इंटरनली हर चीज़ परफेक्ट होगी। सो इंटरनली हर चीज़ परफेक्ट तभी होगी जब हर डिपार्टमेंट अपनी डिपेंडिंग ऑन दी अनदर डिपार्टमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, सिंक्रनाइजेशन में, ठीक है, हारमोनी मेंटेन करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, तभी आप ये चीज़ अचीव कर पाओगे, ठीक है। सो गाइज, हियर वी आर डन विद द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन सिंपली मीन्स, अगर समराइज करें इस लेक्चर को, तो वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज नथिंग बट इट इज creating the synchronization among all the departments and among all the employees working under the different departments, and harmonizing their activities in the single direction towards the attainment of the organizational overall goals and objectives. Okay, thank you guys.